In our today's lecture, what we are going to study, we will solve some numerical problems, and these numerical problems are based on second law of thermodynamics. Okay, so here are some questions. So first questions I am taking from here, and I will share with you on your chat box. See the chat box. First question I am going to take and I'll share here. देखिए क्वेश्चन दिखा आपको? Yes, sir. No, sir. नहीं आया क्वेश्चन? Yes, आ गया सर, आ गया। यस सर आ गया। है ना? आ गया सर, हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या है? आ गया। A heat Yes, engine sir. a heat engine receives 1000 kilowatt of heat at constant temperature of 285 degrees centigrade, and the heat rejected is at 5 degrees centigrade. And the different heat rejections are given are as first is 840 kilowatts, second is 492 kilowatts, and third is 300 kilowatts. And you have to give comment on the result. इसे रिजल्ट क्या आपको बताना है ना? ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे. सो एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट. So you can see in this question, this question 1. Okay, so I will take it here again. So now we are going to take the solution of this. So and what is given here? इसको पहले नोट कर लें व्हाट इज गिवन है, क्या दिया है इसमें. तो आप देख सकते हैं इसमें Q1. हाँ, देखिए इसमें आपको टेम्परेचर Q1 दिया हुआ है ना. हीट एडेड, यस हीट रिसीव है, तो Q1 इज इक्वल टू 1000 किलोवाट. ओके, एज वेल एज द टेम्परेचर T1 दिया है, हायर टेम्परेचर, हायर T1 इज इक्वल टू, दिस इज 285 डिग्री सेंटीग्रेड, and that you can convert into Kelvin, so it is 273 plus 285. इसको प्लस कीजिए, कितना हो रहा है? 558। हाँ, 558 Kelvin. ठीक है. यस सर। And the sink temperature, it is also given. So T2 is also given, that T2, and this is equal to 5 degrees centigrade. 5 degrees centigrade means 273 plus 5. 278। Yeah, so 278 Kelvin. 8। Okay. Now the heat reactions are given differently. Okay. So in the first case, the Q2 is given. So the Q2 is 840 kilowatts. Okay. ठीक है, ये आपको यस given है ना. हाँ. Now we will apply Clausius inequality. So from Clausius inequality, तो हम लोग पढ़ चुके हैं. And it says that for a cyclic process, this is the del Q by T, that we will find. So this is equal to del Q by T
It is for the heat added, so I am writing here heat added minus this term again del q by T heat rejected. So you will find the value here. So and this for this cycle del q by T, del q by T हम निकालेंगे वर्ड इसकी वैल्यू क्या आती है. So that is, अब देखिए पहले केस में क्या हीट एडेड, तो डेल क्यू बाई टी, तो डेल क्यू में कितना हीट एडेड है 1000 किलोवाट, तो इट इज 1000 किलोवाट इज 1000 डिवाइडेड बाई टी. तो टेम्परेचर कितना दिया है, मीन्स टेम्परेचर T1, okay, because at the high, 558. yeah, so 558. Directly you can write this value minus del q by T rejected. So for this one the heat rejection is 840 kilowatt here, 840 kilowatt divided by temperature. So temperature here is given is 278. Okay, so you calculate the value. Yes, sir. What value it is giving? Yes, sir. Here we calculate it. Calculate the value. What value it is giving? For the case B, similarly for the case B, the Q2 is given as 492 kilowatt. 492 kilowatt for the case B, second case. पहले केस में वैल्यू क्या रही, तो सेकंड केस में भी हम सेम इस प्रकार से निकालेंगे. दिस इज डेल क्यू बाई टी फॉर द whole cycle. So the first term will be same. First term means that is 1000 by 558. Only heat rejection is changing. Minus here in place of 840 you will write 492. This is the heat rejection upon 278. And, similarly you write for the third case also, third case C, the Q2 is given as 300 kilowatt. That is for the whole cycle process, the value of del Q by T. Again here this is 1000 by 558 and minus here 300 by 278. Okay, so get the answer. What answer we are getting? बताइए आंसर निकाल पा रहे हैं आप लोग. पहले केस में क्या आंसर आ रहा है? Sir, minus 1.2294. केस में फर्स्ट केस में माइनस 1.2294. 1.2294. ठीक है, सेकंड बताइए. सेकंड केस 0.02233. 0.022 मतलब 0.02 मतलब 0 के आसपास मान ले. ठीक है ना, ठीक है. थर्ड केस 0.7129. 0.7129. अब देखिए, सो हमने इसमें तीनों के इसमें आंसर निकाल लिए हैं कि हमारा डेल क्यू बाई टी फॉर द रिवर्सल साइकिल कितना आ रहा है. देखिए पहले केस में वैल्यू नेगेटिव आ रही है. ओके, सो हियर फ्रॉम द क्लॉसेस इनइक्वालिटी यू नो दैट हियर द वैल्यू दिस डेल क्यू बाई टी negative means it means less than 0. Is it okay? If it is less than 0, inequality means you can say here the cycle is irreversible. This cycle is irreversible. Irreversible में ये less than 0 आता है ना, पढ़ा हुआ है आपने. ठीक है, Yes, sir. cycle is irreversible है ना. मतलब का ये हो गया. सेकेंड केस में 0 आ रहा है,
इस केस में 0.02 मतलब अप्रोक्सीमेटली क्लोजर टू जीरो है, तो जीरो मानेंगे है ना। Yes, sir. So here second case Yes, sir. this del q by t it is equal to 0, इसमें इक्वलिटी Reversible, साइन आ रहा sir. है, so you will write Yes, sir. cycle is Reversible. reversible है ना, cycle is reversible. Reversible. Now in the third case में वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स दिस वैल्यू del q by t इट इज Greater ग्रेटर than देन 0. जीरो। ग्रेटर देन जीरो है, ये वाला केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कभी भी एंट्रोपी की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन जीरो हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। Yes, sir. दिस साइकिल Yes. इज नॉट पॉसिबल, दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल। Not possible. नॉट पॉसिबल से मतलब इसमें ये है, आप देख रहे हैं कि मतलब कोई भी हमारा इंजन वर्क कर रहा है, अगर उसने 1000 किलो आपका ये इतने इतने किलो वाट से मतलब उसने क्या हीट तो लिया है और ये टेम्परेचर है, और 840 किलो वाट रिजेक्ट कर रहा है और इस टेम्परेचर पर, तो उसमें मतलब वो साइकिल कैसा होगा आपका, इरिवर्सिबल साइकिल होगा। Irreversible, sir. ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि Yes. सभी में आपका जो हीट एडिशन सेम है और हीट सोर्स का टेम्परेचर सेम है, हीट सिंक की टेम्परेचर सेम है, ओनली हीट रिजेक्शंस आर डिफरेंट। ओके Yes. या, तो हीट रिजेक्शन में पहले केस में आपका हीट रिजेक्शन 840 किलो वाट है, मतलब मैक्सिमम हीट रेट रिजेक्शन आपको पहले केस में मिल रहा है 840। तो हमारा साइकिल कैसा है, इरिवर्सिबल साइकिल, इसमें हीट रिजेक्शन Reversible हमारा cycle. हीट रिजेक्शन हमारा सबसे ज़्यादा है। सेकेंड केस में हीट रिजेक्शन हमारा कम हुआ है, हीट रिजेक्शन हम कम कर रहे हैं, मीन्स अगर साइकिल हमारा रिवर्सिबल है तो हीट रिजेक्शन क्या होगा, इन कंपेयर टू कम होना चाहिए. इन कंपेयर टू इरिवर्सिबल साइकिल हीट रिजेक्शन क्या हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो साइकिल रिवर्सिबल सेकंड वाला केस। इन द थर्ड केस आप देख रहे हैं कि और भी हमने कम किया है, हम और ट्राई करना चाहते हैं कि हम हीट रेजिस्टेंस और भी कम कर दें, बट उस केस में क्या हो रहा है कि वो साइकिल हमारा पॉसिबल ही नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज सम लिमिट, मींस अप टू 492 किलोवाट फॉर दिस केस इज द मैक्सिमम, सो वी कैन से मिनिमम अमाउंट ऑफ द हीट रिजेक्शन। इससे कम हीट रिजेक्ट हम नहीं कर, इससे हम हीट रिजेक्ट कम नहीं कर सकते, इतना मैक्सिमम करना ही पड़ेगा। तो टू मेक द साइकिल पॉसिबल, अदरवाइज हमारे पास साइकिल पॉसिबल हो नहीं होगा। दिस इज द ऑप्टिमम कंडीशन। ओके, Yes, sir. so by finding del q by t we can solve the problem in this way. Okay? Now I am taking the second question. Yes, sir. So take this question and आपको शेयर कर रहा हूँ आपके हैं चैट बॉक्स में। तो see this question, इस क्वेश्चन में आपका ये 4 kg ऑफ एयर इज कंप्रेस्ड इन ए रिवर्सिबल स्टेडी फ्लो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस E v to the power 1.25 equal to constant from 1 bar and 30 degree centigrade to 10 bar. Calculate the work input, heat transfer and change in entropy. आपको ये निकालना है। So from here going to paste this question here also. इसमें आप देखेंगे कि आपका इसमें 4 kg ऑफ एयर है। या, स्क्रीन शो नहीं हो रहा अभी सर। अच्छा स्क्रीन शो नहीं हो रहा, एक सेकंड मैं करता हूँ, एक सेकंड, Yes, Yes, sir. sir. डोंट वरी। अभी आया कि नहीं आया ना, अभी नहीं आया सर। नहीं अच्छा सर. नहीं आया, नहीं आया सर अभी। एक सेकंड। Okay, now it is visible. Yes, sir. Yes, sir.
Now so see here, इसमें क्या दिया आपको 4 kg of air is compressed in a reversible steady flow polytropic process from 1 bar to 1 bar and 30 centigrade to 10 bar. Tell सर me the स्क्रीन working. ब्लैंक दिख नहीं रही है सर। इसकी ब्लैंक दिख रहा है? नहीं हाँ सर, सर दिख रही दिख रही है सर, है, दिख रही है सर। नेटवर्क इशू हो वही दिख हो रहा है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस यस सर। सर। चलिए यस सर अभी। यस सर। देखिए, तो इसमें क्या है 4 kg दिख रहा है of सर। या तो इसमें अगर आप है ना, वी आर गोइंग टू टेक सॉल्यूशन ऑफ दिस। इसमें आपको दिया हुआ है 4 kg मीन्स m इक्वल टू 4 kg, ये मास दिया हुआ है फुटवेयर का, ठीक है। हियर का सर। ओके, नाउ ये दिया हुआ है 1 बार मीन्स यस सर। P1 इक्वल टू 1 बार, T1 is equal to, this is 30 degree centigrade, so 30 1 plus बार 30 plus T1 हाँ 273, that is equal to 303 हाँ 303 हाँ 303 Kelvin, एज वेल एज P2 आपको दिया हुआ है, P2 इक्वल टू 10 बार। 10 बार। तो आपको जो वर्क डन निकालना है, सो अगर कैसे वर्क डन निकालते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, सो W122 यदि आप निकालते हैं फॉर द पॉलीट्रॉपिक, बताइए इसका क्या फॉर्मूला है? अगर आप फॉर्मूला को याद है, इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? सर वो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। या यू कैन आल्सो राइट MR T1 minus T2 अपॉन N minus 1, लेकिन ये आपका स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, पढ़ा था आपने वाला स्टेडी फ्लो प्रोसेस, प्रोसेस कैसा यस आपका? सर। इसके लिए क्या फॉर्मूला है वर्क डन के लिए? व्हाट इज द फॉर्मूला? ये आपको पता होना चाहिए, है ना। सर वर्क P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1 होता है ना। हम ऐसा ही लिखते हैं, ये ऑल्सो इट इज रिटन एज एंड दिस इज माइनस 122 VDP, सॉरी 122 आएगा, माइनस 122 VDP, है ना। ओके, it is you can minus this MR, you can say T2 minus T1 अपॉन क्या था, एम बनता फॉर्मूला क्या है आप याद कीजिए, ठीक है ना, एन अपन एन माइनस वन है, यस सर। इंटू एन भी आता है ना, ठीक है ना, Yes, वर्क sir. डन के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको Yes. क्या है, T1 T1 है, T2 आपको नोन नहीं है, है ना, T2 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो आपको इसका रिलेशन मालूम है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, ये तरफ है ना, जो इसमें एन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज T2 बाई T1 will be equal to P2 by P1 to the power क्या आएगा, n माइनस N वन minus 1। अपॉन n, यस सर, अपन ठीक है ना। फ्रेंड्स टू यू कैन राइट T2 is equal to T1 into this is T1 actually, T1 into P2 by P1 to the बाई power, P1 N minus 1 हाँ तो n आपको दिया है अपन 1.25, यस सर 1 point। so find the value of T2, T2 वैल्यू आप इसे निकाल दीजिए, you can find here यस सर। T2 and T2 वैल्यू यहाँ पुट करके वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीट्रॉपिक वर्क डन, ओके। पॉलीट्रॉपिक वर्क डन की वैल्यू Yes, sir. यस सर। हाँ जस्ट यस सर। फाइंड इट्स वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू निकाली, क्या वैल्यू आ रही है आपको, आपको यहाँ पर क्या T2 की वैल्यू निकालना है, एज वेल एज आपको वैल्यू निकालना है तो इसकी जिस वर्क डन की वैल्यू, ठीक है ना।
सर इसमें आर की वैल्यू क्या रहेगी सर? आर 0.287, ये आपका 0.287 फिक्स है ना, इसकी वैल्यू आपकी 0.287 एक किलो जूल पर केजी केल्विन में आएगा, है ना। Always for the perfect gas, we have to take this value as 0.287. इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? What is the value you are getting? Because I don't have any calculator, so you have to find this value. T2 कितना आ रहा है? T2 की वैल्यू पुट कीजिए तो आपको मिल जाएगी वैल्यू वर्क डन की. What value you are getting? तो निकाल पा रहे हैं आप लोग? यस सर, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, बिकॉज सर इन एन की वैल्यू कितनी रखेंगे सर? एन 1.25 दिया, वो क्वेश्चन दिया है, पी टू पावर Yes, sir, 1.25, यहाँ पर आपको हाँ एन वही लेना, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर Okay, एन sir. इक्वल टू पावर है वही 1.25। क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपकी स्वयं की प्रैक्टिस होगी यहाँ पर, ठीक है ना। Okay, sir. या you check the value of T2 which is coming as 480.22 Kelvin, ये वैल्यू आ रही है, चेक कर लीजिए, है ना। Yes, sir. आ रही है 480.22 पे। है ना, and substitute this value in the this work done Yes, sir. expression. So आप you can also find this work done W122. So this W122 Minus. हाँ इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। That value is 1017.24. Just to check it, 1017.24. सर आर की वैल्यू सर एक बार फिर बता। 0.287 सर 478 पॉइंट what टेम्परेचर को भी केल्विन में करके करेंगे ना सर? यस एग्जैक्टली, ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना, केल्विन में ही लेना सर है। आंसर सर T2 की वैल्यू आ रही है 478.74। 48280 आ रही है, इसके आसपास भी आ रही है 78.74। क्या, किसकी नहीं वैल्यू? सर 480.22 आ रही है T2 की वैल्यू। Yes, sir. दिस इज द करेक्ट T2 सर की वैल्यू। की वैल्यू नहीं आ रही। You check your calculation, this is the correct value, okay, Okay, and sir. put this value here in this expression to get the value of the work done W122, इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो फिर W122 आएगा, ये वैल्यू आएगी इसकी। This is W122 minus 1017.24, इसके आसपास वैल्यू आनी चाहिए। सर आर की वैल्यू एक बार बता दी सर। आर की 0.287 0.287 यहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, R इक्वल टू 0.287 किलो जूल्स पर केजी केल्विन, इसकी वैल्यू किलो जूल्स पर केजी केल्विन, ये वैल्यू आपको सर याद रखना है, Yes. आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। यस सर -1017.24 केल्विन आ रही है आंसर। आ गया ना आंसर? यस सर। हाँ, इसका मतलब आपके लिए क्या है, वर्क डन हमने, इसमें वर्क डन हमने पहला वाला टर्म हमने निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नाउ वी विल अप्लाई द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। देखिए मेथड शुड बी क्लियर टू यू, कैलकुलेशन यू कैन डू, हाँ, तो मेथड आपको मालूम होती Yes. है, ठीक है। सो फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, बिकॉज हमारा इसमें क्वेश्चन में स्टेडी फ्लो वर्क दिया है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ठीक है। सो फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसमें देखिए, इसमें कि आपको वेलोसिटी वगैरह नहीं दिया है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन एंड निगलेक्टिंग चेंजेज इन के एंड पी। इसको हम क्या निगलेक्ट कर रहे हैं, चेंजेज इन के मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड पी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम क्या कर निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। पोटेंशियल। दैट यू कैन डू, ये क्वेश्चन आप भी कर सकते हैं, Yes. है ना, एग्जाम भी कर सकते हैं, आरबी पे एग्जाम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जैसे आप जानते हैं कि हमारा एक फॉर्मूला होता है Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डी एच। डी यू आता है फर्स्ट लॉ में, सेकंड लॉ में डी एच आता है, चेंज इन एंथैल्पी आता है, ठीक है ना। यू कैन राइट डी एच कैप लिख सकते हैं, अगर मास दिया है तो एच लिखना है आपको। सो दिस फॉर द प्रोसेस 1 to 2 you can write Q1 to 2 and here you can write 1 to 2 this one. Here dH you can say this is equal to H2 minus H1, change in enthalpy H2 minus H1. It is Q1 to 2 minus W1 to 2 equal to H2 minus H1. This is H1. Okay, H2 minus H1. नाउ आप इस क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको इसमें क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर भी आपको इसमें निकालना है, ठीक है ना। यू टू फाइंड हियर, एंड पहला पॉइंट था आपका जो आपको निकालना था, दैट इज द इनपुट। हाँ, सेकंड आपका हीट ट्रांसफर आपको निकालना है इस केस में, यू टू फाइंड हीट ट्रांसफर। सो हियर इन दिस केस वी कैन राइट दिस, और वी कैन राइट इट एज Q1 to 2, हम इसको लिखते हैं Q1 to 2. So this Q1 to 2 can be written as this H2 minus H1 as same H2 minus H1, और जो W1 to 2 इसको हम यहाँ ले जाएंगे, प्लस वी कैन राइट प्लस W1 to 2 because we are knowing this value, इसकी वैल्यू मालूम है। Now this H2 minus H1, this can be written as mCp, and this is you are knowing T2 minus T1, mCb T2 माइनस T1 आता है du के लिए, और इसके लिए आता है mCp T2 माइनस T1 प्लस W1 to 2। देखिए ये आपको क्या है, W1 to 2 आप पहले से निकाल चुके हैं, ओके, निकाल चुके ना W1 to 2। यस सर। और यहाँ mCp T2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m आपको 4 kg दिया हुआ है, Cp लेंगे आप 1.005, T2 आपको है 480.22 है ना, यस सर। और T1 दिया है 303, एंड आपका जो W1 to 2 इसकी वैल्यू कितनी निकालनी, 10 अभी निकाली 1017.24, 10 हाँ yes sir. 1017.24, ये है ना वैल्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q1 to 2 विच इज द हीट ट्रांसफर, ओके। यू सॉल्व इट, यू गेट द वैल्यू ऑफ द हीट ट्रांसफर। माइनस सर माइनस 304.8156 आ रहा। हाँ, Q1 to 2 इक्वल टू माइनस 304 या 0.8156। ओके, ठीक है, चलेगा, क्लोज यूज। इसमें आपकी वैल्यू क्या नेगेटिव आ रही है, कैसी आ रही वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव मीन्स यू कैन से इट इज अ हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन पॉजिटिव, हीट रिजेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव, मतलब हीट यहाँ से क्या हो रही है, हीट रिजेक्टेड, है ना, ठीक है। सो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यस सर। ओके, दिस इज द राइट आंसर। एंड थर्ड वन, आपको थर्ड इसमें निकालना है चेंज ऑफ एंट्रोपी। चेंज ऑफ एंट्रोपी, तो आप इसमें याद कीजिए, आपको एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने चेंज ऑफ एंट्रोपी के लिए, जितने भी फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। सो चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, वी हैव डन इट। तो इसमें आपका H2 माइनस H1 आपको याद है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1, और इसको हम जब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, वर्क डन से, है ना, W yes sir. हाँ, और डिवाइड करते टी Yes, sir. मिल जाता है, इनटू आपका एक्चुअली ये आता है mr log v2 by v1, ये मैंने निकाला, सॉल्व किया था, यस सर। mr log v2 by v1, ठीक है। लेकिन आपको इसमें v2 by v1 की वैल्यू नोन है क्या, नहीं है, ओनली यू नो द वैल्यू ऑफ t2 by t1, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, या सो बट आप इसमें ऐसे लिखेंगे, बट आपको मालूम है कि जो
T2 V2 to the power n minus 1 इक्वल टू होता है T1 V1 to the power n minus 1. minus 1. ओके, ये राइट. इसमें आप सॉल्व Yes, करेंगे. yes, sir. हाँ, इनवर्स आ जाएगा. या सो T2 by T1 equal to this is V1 by V2 T1 is by V2 to the power this is n minus 1 minus n minus 1. and that tends to, अगर आपको लिखना है V1 by V2 तो V1 T2 by T1 1 upon n minus 1. हाँ, so it is T equal to T2 by T1 to the power 1 by n minus 1. 1 by n minus 1 1 by n minus 1. n minus 1. तो आपका यहाँ देखिए V2 by V1 दिया है, कितना दिया है V2 by V1, तो वो की उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मीन्स इफ यू राइट V2 by V1 इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये पलट लीजिए T1 by T2 टू दी पावर 1 अपॉन n माइनस 1. Yes. ठीक है ना. अब इसकी देखिए यहाँ पर क्या लॉग में आ रहा है ये टर्म, इसमें क्या ऐसे सॉल्व करेंगे आप तो आपको एक्सप्रेशन है एस्टिमेट रेशनल के लिए, ये क्या हो जाएगा आपका गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू, अब इसमें लॉग वाला टर्म ये वाला पावर में है तो आपका यहाँ पर आएगा 1 अपॉन n माइनस 1 Yes, sir. इंटू एम आर, और ये आपका लॉग हो जाएगा, टर्म क्या आएगा T1 बाई T2 है ना. T1 by T2. ठीक है ना. सो यू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, चेंज ऑफ एंट्रोपी मिल जाएगा. आपको क्या मेथड क्लियर है? Yes, sir. सर गामा की वैल्यू 1.4 रखेंगे. 4 होती है ना. यस एग्जैक्टली. Yes, sir, यही पूछ रहा था 1.4. 1.4 लेना वही ठीक है ना? रखना है. हाँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ गामा इक्वल टू आपको यूज करना है 1.4, सीपी के वैल्यू आप लेंगे 1.005 5. है ना. R की वैल्यू 0.287 पर केजी केल्विन. सीवी का वैल्यू यदि आपको लेना है, सीवी वैल्यू है 0.718 और है ना, और आप आर का वैल्यू 0.287, ये आपको याद रखना है. 287. ठीक है. तो वैल्यू सॉल्व इट तो आपको इससे क्या निकल जाएगा, आपको एंट्रोपी निकल जाएगी. सर गामा की वैल्यू तो 1.25 रखेंगे ना. नहीं नहीं, एन की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एन. गामा होता है हमारा अब वो n की वैल्यू arithmetic के लिए, है ना? समझ गया सर. ठीक, गामा की वैल्यू 1.4 फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होती है. ठीक है ना. Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. I think the third question is this one 0. This ये ऊपर सॉल्व किया, ये दिख से आपका ये वाला क्वेश्चन करना आपको है ना. दिस वन तो मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन. क्वेश्चन आपको दिखाई दिया? Yes, sir. Okay, so a gas undergoes a non-flow process according to law P equal to 0.15 by V plus 2 bar, where V is the volume and in cubic meter. Calculate the change in enthalpy during the process. If 20 kilojoules of heat is rejected from the system, the initial volume is 0.8 cubic meter and at the end of the process the volume is 0.3 cubic meter. मैं इसको क्वेश्चन के लिए कॉपी करूँगा. देखिए इसके इसमें क्या दिया आपको, एक गैस का जो अंडर को नॉन फ्लो प्रोसेस, यानी प्रोसेस नॉन फ्लो प्रोसेस है. नॉन फ्लो प्रोसेस वी कैन से दैट इज द क्लोज सिस्टम. फ्लो प्रोसेस ओपन सिस्टम, नॉन फ्लो प्रोसेस मींस क्लोज प्रोसेस. आपको इसमें निकालना है चेंज इन एंथैल्पी निकालना है. यू हैव टू फाइंड द चेंज इन एंथैल्पी हियर. सो ओके, so here given is the P, this is the pressure, given is that is the
0.15 upon V plus 2. Okay, this is bar. V आपके इसमें है. Okay, then 20 kilojoule of heat is rejected. So you can see this, maybe you can write Q1, Q2, etc. So minus 20 kilojoule because it is rejected. So we will take with the minus sign. Initial volume, so that you can say V1 equal to 0.8 cubic meter and V2 equal to 0.3 cubic meter. ओके, तो राइटली हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमारा इसमें कम हो रहा है ना, कम हो रहा है मतलब कंप्रेशन रहेगा, एक्सपांशन वॉल्यूम बढ़ता है. सो नाउ हियर फ्रॉम रिलेशन, देखिए इसमें हम एक रिलेशन जानते हैं, हम इसको लिखते हैं एंथैल्पी के लिए. आप जानते हैं H इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी, यस सर. ये आप ऑलरेडी जानते हैं. और भी ऑल्सो राइट दैट दिस नॉट डी क्यू बट डेल क्यू, दैट ने पढ़ा है, डेल क्यू इक्वल टू डी एच माइनस बी डी पी, हमने पढ़ा हुआ है ना. यस सर. डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में निकालते हैं. डेल क्यू इक्वल टू डी एच माइनस बी डी पी, है ना. डेल क्यू इसमें हमारा क्या हीट ट्रांसफर होता है, डी एच इज द चेंज एंथैल्पी और प्लस बी डी पी माइनस बी डी हमारा वर्क होता है. सपोज हम इसकी इक्वेशन नंबर 1 मान लिया फॉर एग्जाम्पल. अब देखिए हमारे लिए जो दिया हुआ है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो गिवन है, अकॉर्डिंग टू जिसमें लॉ क्या दिया हमारे प्रेशर के लिए, दिस इज P इक्वल टू 0.15 अपॉन V प्लस 2 बार, ये दिया हुआ है. इसको बार तो इसमें क्या है, इसमें इसका यूनिट है, इसमें और कुछ नहीं है. अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सो वी कैन राइट, P से इसका निकालो तो इसका dP लिखें अगर हम इसका, so that dP can be written as 0.15 और आपका ये हो जाएगा डी स्क्वायर. का डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, हाँ ये माइनस आएगा, है ना. डिफ्रेंशिएट करके तो क्या आएगा, माइनस भी आएगा आगे, माइनस 1 बी डी पर माइनस 1 हो जाएगा ना ऊपर, है ना. यस सर. -1 -1 फिर -2, तो -2 हो जाएगा ये. यस सर. तो नीचे आ गया 0.15 अपन बी स्क्वायर और यहाँ पर आपका जाएगा ये प्लस 0. नहीं यहाँ पर जाएगा आपका बी है ना, डी भी तो जाएगा और ये बार आपका ऐसे रहेगा, ये बार ऐसे रहेगा, है ना. ये आपने इसमें डीपी निकाल लिया. अब देखिए इस रिलेशन से भी हम थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 1 से भी हम लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 बी पे को रख देंगे उधर. हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन डू, बिकॉज हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, वी कैन राइट डी एच इक्वल टू दिस, डी एच इक्वल टू दैट वी कैन राइट डेल क्यू प्लस बी डी पी प्लस बी डी पी. यस सर. यस सर. ओके, सो दिस डेल क्यू. नाउ डेल क्यू है, इसका डेल क्यू का वैल्यू दिया है 20 किलो जूल माइनस 20. ओके, अब इसमें क्या है, Yes, BD आपका ये BDP है. तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है BDP है, इसको आप सॉल्व करेंगे, BDP पर जो टर्म सॉल्व करेंगे, सो दैट यू कैन राइट हियर डायरेक्टली. ये आपका क्या आएगा, दिस इज माइनस 0.15 अपॉन V माइनस 0.15. देखिए Upon V. ये B से भी कैंसिल हो जाएगा, है ना. यस सर. 0.15 अपॉन V और आपको हो जाएगा ये DV. टीवी. ठीक है, ये हमने हाँ. अब आपको उसमें चेंज एंथैल्पी निकालना है कि इसको फिर इंटीग्रेट करते हैं, एक्चुअली उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, है ना. तो यहाँ भी क्या होगा, दिस इज आल्सो 1 to 2 हो जाएगा, ये भी आपका यस सर. दिस इज आल्सो 1 to 2, है ना. इसको इंटीग्रेट करेंगे हम.
सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा H2 माइनस H1 चेंज इन एंथैल्पी, Yes, sir. Yes, sir. है ना, और इसको आप लिख माइनस सकते 20। हैं Q122 सिंपल, इसका वैल्यू ऑलरेडी पुटअप कर दिया हमने, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा यस सर। माइनस, अब ये इसका क्या हो जाएगा ln v 0.15, log v। यस log V2 बाई V1, यस सर, है ना। v2 की वैल्यू रख देंगे 1 2/1। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको देखिए ये आपको दिया हुआ है 20 किलो जूल्स, मैं वैल्यू वाली यहाँ पुट कर दी है ना, ये वैल्यू 20 आपको यहाँ जाएगा माइनस 0.15 V2 बाई V1, तो आपको वैल्यू V1 का वैल्यू भी गिवन है और V2 का वैल्यू भी गिवन है, सो यू कैन फाइंड चेंज इन एंथैल्पी, इसको आप निकाल सकते हैं। हो पाएगा? Yes, sir. यस सर। हो जाएगा ना, कोई डाउट Yes, है? sir. मतलब नहीं स्टेप्स सर। आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना, यस सर। Yes, sir. है ना। ये वाला क्वेश्चन, इसका हम तो लास्ट क्वेश्चन के जा रहे हैं, है ना, मोर क्वेश्चन लेफ्ट। हाँ ये वाला एक क्वेश्चन और है आपका, दिस वन, सो दिस टाइम टू सी है, ये छोटा क्वेश्चन है 0.2, क्वेश्चन दिखा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, sir. बिकॉज देयर इज सम टाइम लिमिट, सो बिकॉज ऑफ दैट, है ना, बाकी आपके पास है टाइम, कोई दिक्कत नहीं, का क्लास का कोई है नहीं, है ना, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ भी कॉपी कर रहा हूँ। सेकंड का आंसर कितना आ रहा था सर? सेकेंड मतलब इसी क्वेश्चन का, बहुत पहले क्वेश्चन का, सर ये अभी किया था सर, इसी वाले इसका ही। ये वाले क्वेश्चन में चेंज इन एंथैल्पी है ना, चेंज इन Yes, sir. एंथैल्पी इसकी वैल्यू आ रही है -5.3 आ रहा है, -5.3 किलो जूल्स। सर थोड़ा सा स्लाइड ऊपर ऊपर कीजिएगा सर, थोड़ा सा ऊपर। अभी ये, नहीं नहीं, हाँ इसकी वैल्यू आ रही है -5.3 किलो जूल्स। अभी भेजिएगा आपको इस स्लाइड, यस Yes, सर। sir. सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, हल्का सा स्लाइड, ज्यादा नहीं। अभी और ऊपर या और नीचे, नहीं नहीं नहीं, नीचे 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 सर नीचे। हाँ और नीचे। नीचे करो, यस सर, यस बस बस सर, बस 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 इतने इतने। ओके, वो सर, आराम से कर लीजिए, मेरे पास टाइम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। नहीं सर, वो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आराम से लिख लेंगे, टाइम हो गया सर, हो गया। ठीक है ना, इसको मैं आपके लिए शेयर भी कर दूंगा, ग्रुप पे शेयर कर दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है ना, ओके, ओके सर, ओके। है ना, यस सर। या सो बिकॉज हमने आपने ग्रुप फॉर्म किया थर्ड नाम, उसमें शेयर कर देगा बहुत चीज़ें आपको, ठीक है, उसमें उसमें सारे Yes, हाँ sir. सर, हाँ सर, उसमें ये सारे, चीज़ सही है। उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट कनेक्ट हो जाए, इसको आंसर कीजिए आप, है ना, ठीक है। इसमें देखिए स्टेटमेंट दिया आपका कि 0.2 cubic meter of air at 1 bar and 60 degree centigrade is compressed to 0.05 cubic meter according to the law P V to the power 1.3 equal to C। आप यहाँ पे देखेंगे अगेन फिर से कौन सा लॉ आ गया, यहाँ पर ये पॉलीटॉप फिर से आ गया है, फिर से और पॉलीटॉप। टॉपिक आ गया सर। Now the heat is added at constant volume until its pressure is 10 bar. Calculate the change in entropy in each case। अब इसमें change in entropy निकालना पड़ेगा। तो इसमें देखिए जब भी आप गैस लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है, PV इक्वल टू MRT होता है, MRT1 आप ले रहे हैं तो आपको M की नीड पड़ती है, यस सर, N1.3। नहीं M मास की जरूरत पड़ती है तो आपको, एम, हाँ हाँ सर, हाँ तो मार। वही मास, फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें ना मास उसमें। आपको इसमें दिया नहीं है एक्चुअली, तो आप इसमें पहले आप मास निकालेंगे, सर वो पीवी इक्वल्स टू आरटी समझेंगे। यस, है ना। तो अगर इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप इसमें चाहे तो वैल्यू नोट कर सकते हैं, 0 पॉइंट इतना दिया है 1 बार, तो आप लिख सकते हैं P1 इक्वल टू दिया 1 बार, 1 बार 1 बार ठीक है, टू 10। T1 इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 273 Yes. प्लस 60। या तो ये 333 केल्विन, ठीक है, आपका ये हो गया कंप्रेस टू 0.0। तो देखिए इसमें V1 भी आपको दिया है, V2 हाँ V1 इक्वल टू 0.2 क्यूबिक मीटर, 0.2 V2 इक्वल टू
0.05 0.05 सर या अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। और इसमें एक और यस सर प्रेशर दिया हुआ है, दैट इज आई थिंक 10 bar P2 हाँ 10 बार नहीं 100 10 बार T2 नहीं है, इसलिए P3 दिया, बता रहा हूँ कैसे होगा आपको। P3 इक्वल टू 2 10 बार होगा इस प्रेशर का, ठीक है। हाँ एंगल टू, देखिए पहले क्या हो रहा है कि कंप्रेस कर रहा है कहाँ तक 0.05 क्यूब मीटर तक अकॉर्डिंग टू लॉ, ये हमारा पॉलीट्रॉपिक पहले कंप्रेशन है। इसके बाद जो हीट ऐड करते हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। हीट एडिशन हियर इज बीइंग डन, इट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आपको इसको देखिए सॉल्व करने के पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट्स फिगर, कैसे ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपको अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं किस पर, पीवी डायग्राम पे इसको ड्रॉ करते हैं, तो सब लेते हैं, वेरी सिंपल है, टिपिकल नहीं है। यहाँ आप इसको पी लिख दीजिए, तो यहाँ आपका ये वॉल्यूम तो डी आ गया, ठीक है। अब देखिए पहला इसमें क्या है कि कंप्रेशन है तो ऑलवेज वॉल्यूम कम होगा। तो सपोज ये हमारा कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसको हम ऐसा लिख रहा हूँ रफली, एट दिस पॉइंट इज 1 से हमने स्टार्ट किया, उसका कंप्रेशन किया पॉलीट्रॉपिक अप टू दिस पॉइंट 2, तो इसको आप लिखेंगे, ये आपका पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन है, मीन्स इट इज पी इंटू वी टू दी पावर क्या दिया 1.3, पी इंटू वी टू पावर 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब इसको फॉलो कर रहा है, ओके। दिस इज ना यस पॉलीट्रॉपिक सर प्रोसेस, पी इंटू वी टू पावर 1.3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इसके ये हमारा कंप्रेशन हो गया। कंप्रेशन होने के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नाउ द, हीट एडिशन हाँ, हीट इज एडेड हीट इज एट एडेड कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड करें मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो दैट प्रोसेस विल बी कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। सो यू कैन ड्रॉप ए लाइन हियर बिकॉज इट इज द, अगर आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे, ओके, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। सो दिस पॉइंट विल बी 3, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ओके। दिस इज Q, यू कैन से 2 to 3, है ना, ये हीट ऐड होती है और ये इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रहेगा आपका, है ना, ऐड करना हीट yes sir यहाँ हो यस जाएगा। सर लेकिन दिस प्रोसेस को बोलेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और यहाँ पर जो प्रेशर है कितने प्रेशर का हो रहा है, यहाँ पर P3 मिलेगा आपको, आइसोपोरिक प्रोसेस प्रेशर P3, ओके। और यहाँ पर आपका ये प्रेशर कितना, एक क्या क्या होगा, प्रेशर P2 है, P2 P1 हो जाएगा और ये वाला प्रेशर आपका P1 P1 क्या है, मिला लीजिए इसको, तो ये हमारा P1 है। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप इट हियर, सो आपका इसमें आप दे सकते हैं, हियर यू विल गेट V2 and V3 V2 इक्वल टू V3 रहेगा, V2 V2 इक्वल टू V3, एनी डाउट, V3 नो है ना, सर V2 इक्वल टू V3। तो आपका ये इस प्रकार का ये प्रोसेस बनेगा। ये हमने इसको ड्रॉ किया है पीवी डायग्राम पे, इसको अगर आप टीएस डायग्राम पर भी ड्रॉ करें, दैट कैन आल्सो यू कैन आल्सो डू, थोड़ा स्लाइटली डिफरेंस आएगा टीएस डायग्राम में। सपोज आपने यहाँ पर ये टेम्परेचर T ले लिया, ओके, एंड यहाँ पर आपने एंट्रोपी लिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, यू कैन ड्रॉ द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, देन यू कैन ड्रॉ इट, ओके। सपोज हाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हाँ, नहीं आइसोथर्म बनेगा नहीं आपको पहले से ऐसे, मतलब आप आगे पढ़ेंगे मॉडल डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको इस प्रकार की ऐसी कुछ लाइन मिलेंगी आपको, ओके। एंड दी लाइंस आर कॉल्ड एज द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके। दीज आर द कॉल्ड द कांस्टेंट प्रेशर लाइंस। सपोज इस पर हमारा प्रेशर P1 है, यहाँ पर हमारा प्रेशर P2 है, P2 और यहाँ पर P3, ऊपर की ओर जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ेगा, ओके। यस सर Here you yes sir can see P3 is greater than P2 and it is greater than P1, okay। हमारी जो लाइंस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर लाइंस हैं। अब देखिए पहला वाला, अगर सपोज हम मानते हैं कि हम पहले पॉइंट पर यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा प्रेशर कितना P1, दिस इज पॉइंट 1, तो पहला हमारा प्रोसेस 1 to 2 है, एंड 1 to 2 प्रोसेस द पॉलीटॉप प्रोसेस। तो इस प्रकार से अप्रोक्सीमेटली मान लो इसने आपको ड्रॉ किया, तो आपका इस प्रकार से मान लो कर्व जा रहा है लाइक, ठीक है। 1 से 2 पर आपको 2 पॉइंट मिल गया, आप यहाँ पर आ गए, आपने पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन कर लिया। इसमें देख रहा है कि आपका पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन करेंगे, जब एक्सपांशन में एंट्रोपी बढ़ती है तो कंप्रेशन में एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग इन एक्सपांशन, तो कंप्रेशन एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी, तब इसमें एंट्रोपी इसमें कम हो रही है। इसके बाद यस सर जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करेंगे, तो हीट एडिशन पे क्या होगा, फिर एंट्रोपी बढ़ेगी,
तो 2 से Yes, आप sir. जब 3 की ओर जाएंगे 2 से तो 3 में बढ़ जाएगी। इस अप्रोक्सीमेटली साइड आपका में जो आएगी, कर्व लगा हुआ है P3 साइड. अप्रोक्सीमेटली आपका ऐसा जाएगा, रफली गन ड्रॉ करके। Yes, sir. तो 3 पॉइंट विल बी हियर। Yeah. Okay, now this process, Yes. this process is PV to the power n equal, sorry, 1.3 दिया ना, 1.3. 1.3, Yes, sir. 1.3 इक्वल टू कांस्टेंट, और आपका ये हो Constant. जाएगा, V इक्वल टू कांस्टेंट या वॉल्यूम कांस्टेंट है, V इक्वल टू कांस्टेंट। हियर यू कैन आल्सो राइट V इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर, क्लियर है ना? हाँ yes क्लियर sir. है सर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर दें। ओके, तो आपका इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, पहले इसमें मास निकालेंगे हम, है ना, ठीक है। सो फ्रॉम गैस इक्वेशन, या PV is equals to MRT. फ्रॉम परफेक्ट और आइडियल गैस इक्वेशन, actually you can apply this equation anywhere. So you can write P1 V1 equal to MRT1, P1 V1 equal to MRT1। इसको आप P2 V2 equal to MRT2 लिख सकते हैं आप, ठीक है। That will give you M equal to P1 V1 upon RT1, P1 V1 upon RT1। R तो देखिए इसमें आपको P1 नोन है, P1 आपको देखिए गिवन है, V1 भी गिवन है, P1 इज गिवन, V1 इज गिवन, T1 इज गिवन, और R का वैल्यू आप जानते हैं 0.287। Yes, sir. 0.287. तो पहले आप अपना M निकाल लीजिए, मास क्या आ रहा है। फर्स्ट आपको क्या निकालना है इसमें, ये टू कैलकुलेट मास M। पहला पॉइंट आप मास कैलकुलेट कर लीजिए, बाकी आपको सारी वैल्यू यहाँ पे इसमें गिवन है। देन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। सिंपली फ्रॉम एक्चुअली P2 और P2 हम डायरेक्टली निकाल देते हैं, बिकॉज हमें ये इसमें दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम अदर पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। वी फाइंड इट देन ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस और फॉर कंप्रेशन प्रोसेस। ड्यूरिंग कंप्रेशन प्रोसेस प्रोसेस हमारा क्या है, बिकॉज प्रोसेस हमारा पॉलीटॉप प्रोसेस है। सो वी कैन राइट दिस P2 इक्वल टू P1 इंटू आपका हो जाएगा ये V1 बाई V2 टू दी पावर, दिस इज n। बिकॉज आप जानते हैं कि इसमें लिखते हैं P1 V1 टू दी पावर n, दिस इज द रिलेशन फॉर द पॉलीटॉप प्रोसेस, P2 V2 टू दी पावर n, ये आप जानते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा आपका P2 इक्वल टू P1 V1 बाई V2 की पावर n। आपको देखिए दोनों वॉल्यूम दिए हैं, आपको V1 भी गिवन है, V2 भी गिवन है, और P1 भी नोन है, देन यू कैन कैलकुलेट P2 फ्रॉम हियर। सिमिलरली you can also write T2 equal to T1 and it is again V2 by V1। इससे आप निकाल सकते हैं V2 by V1, है ना, V2 by V1। और यू कैन ऑल्सो टेक, अगर ये लेंगे तो आपका इसमें आएगा इंटू दी पावर इंटर ऑफ P2 लिख लीजिए, वो आपको बेटर रहेगा, P2 निकल जाएगा डायरेक्ट। -1 कौन M? नहीं माइनस समझ जाइए, जरूरत नहीं डायरेक्ट, सर वो नहीं P2 बाई क्यों ले लीजिए, P2 आपका फाइंड हो गया, आपने P2 निकाल लिया है, तो इसको ले लीजिए Yes, P2 sir. बाई P1 टू दी पावर डायरेक्ट इसी n माइनस वन अपॉन है, M minus one. इससे डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। बिकॉज आप कहें P2 नोन हो गया, तो P1 P2 नोन है, तो आप इस टर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. सो फ्रॉम दिस वी विल फाइंड T2 ऑल्सो।
कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कर लेना, बट आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ, है ना। Yes, sir. Yes. अगर आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो नो प्रॉब्लम, स्टेप नोट कर लीजिए, है ना। Yes, और sir. कैलकुलेशन तो अभी 10th क्लास के स्टूडेंट कर सकता है ना, लेकिन वो मेथड नहीं आता कैसे करना। Yes. ओके, यस सर। कैलकुलेशन इज नॉट ए बिग Yes, टास्क, Yes, sir. sir. इज नॉट ए बिग टास्क, बट द मेथड प्रोसेस क्या करना है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, वो आपका पार्ट है, इम्पोर्टेंट। Yes, sir. ओके, नाउ हम क्या निकाल रहे हैं, यस हमें सर। चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालना है, तो हम पहले लिखेंगे चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमारा कितना चेंज ऑफ एंट्रोपी हो रहा है। चेंज ऑफ एंट्रोपी, बस फॉर्मूले वही हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सॉरी, चेंज ऑफ एंट्रोपी, Yes. चेंज ऑफ एंट्रोपी दिस इज ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ऑलरेडी आप इसका फॉर्मूला जानते हैं, आप बी राइट हियर, दिस इज S2 एंड माइनस S1, Minus S1. S1, Sir, S2, sir, S3 minus S2 होगा ना सर? तो हाँ लिख सकते हैं, वो देखिए, ओके यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, तो लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, है ना, राइट, ठीक है, एक ही बात है, नोटेशन तो डिफरेंट नहीं ना। तो S3 माइनस S2 इक्वल टू, देखिए इसमें क्या होता है M, और हमारे इसमें आता है गामा माइनस N अपॉन गामा माइनस 1, Yes, sir. into W। है ना, हाँ, ये आपको हो जाएगा। और इसमें फिर आपने पढ़ा था R log V2 बाई V1, ठीक है ना, Yes, आपको, sir. है ना, एम Yes, sir. एक ही बात है। अब देखिए आपको सर V2 बाई V1 है, इसमें V2 बाई V1 आपके लिए गिवन है क्या, गिवन है ना, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Given N है. bar. Given है। यू कैन कैलकुलेट एंट्रोपी फ्रॉम दिस फॉर्मूला, Yes, sir. हो जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे हो जाएगा सर। हाँ, गामा का वैल्यू 1.4, एन का वैल्यू यहाँ पर 1.3 दिया ना, 3, 1.3. 1.3, Yes, है ना, sir. आर का वैल्यू 0.287, सो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस चेंज इन एंट्रोपी, ओके, S2 minus S2। है ना। द लास्ट वन एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कांस्टेंट वैल्यू प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, नहीं आपका ये 1 to 2 ही था, ये 3 to 3 नहीं था, वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम में 3 to है, ये वाला 1 to 3 है ना, ये रॉन्ग हो गया, इसको सही कर लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर क्या है आपका, ये 2 में 1 to वॉल्यूम 2 कांस्टेंट है। या है ना, हाँ, तो ये 1 to 2 है ना, 2 to 1 आएगा, है ना, ठीक है, Yes, sir. है ना, ठीक है ना। ये 2 to 3 हमारा कब है, ये वाला 2 to 3 हमारा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम 2 to 3 आएगा, ओके, सर वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगा ना। हाँ, ये है ना, ठीक है ना, तो पहले सही चल रहा था ना, ड्यूरिंग दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऐसे पूरी। हाँ, ऐसे कर। तो उसी आपको ये आपने इक्वेशन 5 और 6 निकाले, वहीं से आप ले लेंगे, तो ये S2 माइनस S1, इसका फॉर्मूला आपको वैसे इसका मालूम है, इसका फॉर्मूला होता है आपका, दिस इज MCV, और इसमें लॉग निकालते हैं आप, क्या होता है P3 बाई P2, तो इसमें क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसका इक्वेशन देख लीजिए, P3 बाई P2 से आपका निकल जाएगा ये, आपको याद है इक्वेशन कि बी के टर्म में आता है, डेल क्यू इक्वल टू डी एच माइनस बी डी पी टी। हाँ, तो ये देख लीजिए किस फॉर्म में आ रहा है,
तो आपका इससे निकल जाए। इसमें आप जो सी बी है, सी बी को आप आर अपॉन गामा माइनस वन लिख सकते हैं। सी इक्वल टू होता है आपका आर अपॉन गामा माइनस वन, ये तो नोन नहीं है, आर अपॉन गामा माइनस वन और ये का लॉग P3/P2। हाँ, उसमें आपको आई थिंक सारी वैल्यू आपको इसमें नोन है ना। P3 आपको दिया है यहाँ पर 10 बार दिया है, ये आगे नहीं है। P3 इक्वल टू आपको ये आपको 10 बार 10 दिया बार। है, इसमें P3 लेंगे। P2 आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। Yes, sir. यस सर। ठीक है, सो फ्रॉम सर ये S3 माइनस S2 होगा ना इधर? हाँ ये S3 है एग्जैक्टली, ये S3 माइनस S2 होगा, S3 माइनस S2। S3 माइनस S2 होगा एग्जैक्टली, है ना, है ना। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड द वैल्यू, है ना। तो इसमें एक्चुअली ये P3/P2 आपको जो प्रेशर है कि इससे निकाल लेंगे आप लॉग करके और इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्या निकल आएगा, एंट्रोपी चेंज फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ओके सर। ठीक है ना।